السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حاضرین اجلاس، آج میں جس تقریر کے تحت دو چار باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے عیدین کی نماز۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سال بھر میں دو خوشیوں کے دن رکھے ہیں، اور ان دونوں خوشیوں کے دن کو عیدین کہا جاتا ہے، یعنی دو عید کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، پہلی عید جس کو ہم لوگ عید الفطر بھی کہتے ہیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد سوال کی پہلی تاریخ کو پڑتی ہے میرے بھائیوں۔ اور دوسری عید جس کو ہم لوگ بقرہ عید اور عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، یہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن مسلمانوں کے لیے ان دونوں تیوہاروں کی شان دوسری قوموں سے بالکل الگ ہے، دوسری قوموں کی تیوہار سے بالکل الگ ہے میرے بھائیوں۔ اور ان تیوہاروں کو منانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان دنوں میں گانے بجانے یا گندا الفاظ منہ سے نکالنے کی اجازت ہو میرے بھائیوں۔ تاڑی شراب پینے کو جائز کر دیا گیا ہو، سینما تھیٹر اور بائسکوپ دیکھنے میں خوب شوق سے پیسے خرچ کر جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جتنی طاقت دی ہے اس کے حساب سے وہ لوگ اچھا کپڑا پہنے، اور اس کے حساب سے وہ لوگ اچھا کھانا کھائیں، اور اس کے حساب سے وہ لوگ غریبوں اور مسکینوں میں خیرات کرے میرے بھائیوں۔ اور نہا دھو کر کے سویرے لوگوں کے ساتھ مل جل کر تکبیر پڑھتے ہوئے عیدگاہ پر جائے، اور وہاں پر جا کر کے 2 رکعت جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اور نماز ختم ہو جانے کے بعد امام کا خطبہ سنے، اور امام کا خطبہ ختم ہونے کے بعد واپس گھر چلے آئے۔ پہلی عید کا مقصد دیکھو، پہلی عید رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد پڑتی ہے میرے بھائیوں۔ رمضان شریف میں روزہ رکھنا بھی ہر مسلمان مرد ہو یا عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی عبادت ہے، اور یہ بات بھی تو خوشی ہونے کی ہے کہ
कि तुम देखते हो कि लोग रोजे की हालत में भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, भूख भी लगी रहती है, प्यास भी लगी रहती है, खाने की चीज भी मौजूद रहती है, लेकिन रोजा रखने वाले कुछ खाते पीते नहीं है, रोजा रखने वाले कुछ खाते पीते नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक भूख और प्यास को बर्दाश्त कर ले जाते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक का यही हुक्म है, अल्लाह पाक का यही हुक्म है। हम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं और हम उसके हुक्म के ताबेदार हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारा मालिक है और हम उसके गुलाम हैं, हम उसके गुलाम हैं। तो जब हमने कोई ऐसा काम किया जो हमारे लिए मुश्किल था और उस काम को हम लोगों ने पूरा कर दिया, तो मेरे भाई उसमें भी हम लोगों को खुशी महसूस होती है, उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। जैसे कि अगर तुम्हें अपने उस्ताद कोई काम करने को कहे और अगर दूसरे दिन उनके पास उस सबक को याद करके जाओगे, उस काम को पूरा करके जाओगे, बहुत अच्छी तरीके से याद करके जाओगे, तो अनकरीब वो तुमको अपने उस्ताद तुमको शाबाश देंगे। तो मेरे भाई उस वक्त आपको भी बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, बहुत ही ज़्यादा आपको भी खुशी होगी। उसी तरह उस रोजे का भी समझो, बस उसी तरह उस रमजानुल महीने का रोजे का भी समझो। यही से तुम यह बात भी समझ सकते हो कि जो लोग बीमारी का नाटक करते हैं और रोजा नहीं रखते हैं, रोजा से दूर रहते हैं, तो मेरे भाइयों अल्लाह पाक का हुक्म नहीं मानते। वो लोग अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नहीं मानते हैं और बड़े गुनाह का काम करते हैं। उनके लिए ईद की खुशी का भी कोई हक नहीं है। ईद की खुशी तो रोजादारों के लिए, ईद की खुशी तो रोजादारों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है। मेरे भाइयों, बेरोजादारों के लिए अल्लाह तबारक व तआला उस पर लानत फरमाता है। दूसरी ईद का मकसद, दूसरी ईद जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर जानवरों को ज़बह कर दिया जाता है, जानवरों को हर एक घर में ज़बह किया जाता है मेरे भाइयों, और उसको हम लोग कुर्बानी भी कहते हैं, उसको हम लोग कुर्बानी कहते हैं। उसी कुर्बानी से उस वाक़या की याद को ताज़ा किया जाता है जो इस दुनिया में एक बहुत बड़ा अजीब वाक़या गुजरा है, बहुत बड़ा अजीब वाक़या गुजरा है और वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के खास पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, अल्लाह जो बड़ी दुआ और तमन्नाओं के बाद पैदा हुए थे, जो बड़ी दुआ और तमन्नाओं के बाद पैदा हुए थे। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी। आजकल के लड़की की मोहब्बत में लोग अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की परवाह नहीं करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से दूर रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से दूर रहते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के खास बंदे तो ऐसे नहीं होते हैं, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला को दुनिया में ये दिखाना मंजूर हुआ, अल्लाह पाक को ये दुनिया में दिखाना मंजूर हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के खास पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से ये ख्वाब में दिखाया गया कि वो अपने बेटे को अपने हाथों से ज़बह करे। मेरे भाइयों, जब ये बात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कही तो उन्होंने बड़ी खुशी से मंजूर कर लिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि अब्बा जान, मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैं उसके लिए हर तरह हाजिर हूँ। मेरे भाइयों, उस वक्त दोनों हजरात मक्का मुआज़मा में थे और मक्का के कुछ फासला पर एक मकाम है, उसका नाम मन्ना है। मेरे भाइयों, एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहीं पर लेकर जाते हैं।
बाप के हाथ पर छुरी पकड़ी हुई रहती है और अपने बेटे को जमीन पर सुलाकर करोट के बल कर देते हैं और चाहते ही थे कि अपने बेटे का गला काट दे। तभी अल्लाह की तरफ से आवाज आई कि बस इब्राहिम, तुम शाबाश हो तुम पर, तुमने इस ख्वाब को बिल्कुल सच कर दिखाया, तुमने इस ख्वाब को बिल्कुल सच कर दिखलाया। मेरे भाइयों, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान अल्लाह तबारक व तआला ने बचा ली और उसकी जगह पर एक जानवर ज़बह कर दिया गया। बाप और बेटे की यही कुर्बानी है और उस वाक़िया की याद को अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए बाकी रख दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए बाकी रख दिया है। अल्लाह तबारक व तआला की हज़ारों हज़ार रहमतें हो ऐसे बाप और ऐसे बेटे पर। मैं यही से अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को पूरी रोज़ा रखने की तौफीक इनात फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।